welcome back to my channel Learning Mathematics, and in today's video we are going to solve sums of exercise 2.2. Question number 1, which says find zeros and verify relationship between zeros and coefficients. The first equation given is x square minus 2x minus 8. So here we have to let the equation be equal to 0 because it's given find zeros. So we are going to copy the equation again, that is x square minus 2x minus 8. Now as we have that is equal to 0. Now as we have studied that we have to factorize this. So if you don't take the 0, it's fine previously. We will first find the factors of minus 8 such that the answer is minus 2. So factors of minus 8 are 2 4 8. If we do 4 minus 2, it will be 2. But we want the answer to be minus 2. So it's going to be plus 2 and minus 4. So x square plus 2x minus 4x minus 8. Now we will find x. X is common. 1x is taken out, 1x inside, plus 2. Here 8 goes in 4 staple, 4. X is remaining, we'll write x. Now here sign will be plus because this sign is minus. Because if we do minus into minus, it will become plus. So it is minus into plus, that is minus. Now we get two common brackets. That is x plus 4 and x minus 4 and x plus 2. Now we'll let this equal to 0. We will take one equation, one bracket, it's x plus 2. Now here x minus 4 equal to 0 and x plus 2 equal to 0. So we have two brackets, two solutions here. X is equal to, now this is minus 4. When it goes here, it will become 0 plus 4, that is x is equal to 4. So this is one value we have got, and another is x equal to, now this is plus 2. When it shifts to equal to sign, this plus will become minus, so it's going to be minus 2. Now we will let one value be alpha and other be beta. So if we take alpha equal to 4 and beta equal to minus 2. Now let's see how we can verify the relationship. Now to verify the relationship, we are going to first take alpha plus beta, which is equal to minus b upon a. Now here in this equation, what is b and what is a? Here a's value, there is nothing, that means it is 1. Value of b is minus 2 because it is having minus sign. उसके पास माइनस साइन है, और c के पास है minus 8. c is having a value of minus 8. So अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. So अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है minus 2. ब्रैकेट लगा देंगे 2 so that you don't have confusion. Again minus b का वैल्यू है, the value of minus b is minus 2. Now it is minus 2 and first sign is original minus upon a का वैल्यू है 1. Now let's solve the bracket. 4 plus into minus becomes minus 2 equal to minus into minus becomes plus 2. Okay, so 4 minus 2 is 2. So therefore LHS, that is left hand side, is equal to the right hand side. मतलब ये relationship verified हो गया. Now let's see the next relationship, that is alpha into beta, or you may write it as dot. Dot also means the same. So alpha into beta is equal to c upon a.
अब c का वैल्यू क्या है, c इज वैल्यू इज -8, यहाँ पर अल्फा वैल्यू इज 4, बीटा का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है -8, a का वैल्यू है 1। अब 4 इंटू 2 हो गया 8, क्योंकि ये प्लस और माइनस है, दिस इज प्लस एंड माइनस, so प्लस इंटू माइनस बिकम्स ऑब्वियसली माइनस, एंड दिस इज ऑब्वियसली एनीथिंग डिवाइडेड 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो ये भी हो गया -8। तो ये रिलेशनशिप हमें मिल गई, वेरीफाई हो गई। So this was all about question number 1, first sum from exercise 2.2. Now we'll come to the next sum. Now we will come on to second sum which is of similar type. Equation क्या दिया गया है, the equation given is 4s square minus 4s plus 1. अब हमें यहाँ पर जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले सम में यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, बट यहाँ पर क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई c टर्म एंड a टर्म, मतलब 4 1 जा 4, प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है, तो हमें 4 के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिसका आंसर हमें मिलेगा -4. वी वांट द आंसर टू बी -4. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ 2. इन 2 टेबल 4 आता है, पर साइन बीच में का -4 होना चाहिए और दोनों का प्लस, तो अगर हम करें तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस होगा, पर साइन माइनस रहेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट टू फैक्टर्स व्हिच वी गॉट 2s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, क्योंकि -2s हो गया -4s, और माइनस इंटू माइनस हो गया +4 प्लस 1. अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे. नाउ वी विल फाइंड द कॉमन वैल्यूज इन दीज. सो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 के टेबल में आता है और इसके पास एक s है कॉमन में, सो दिस विल बी 2s. अब 2 बाहर गया तो 2 2 जा 4, एक s हमने बाहर निकाला था, माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 लिखेंगे हम लोग. उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर निकालेंगे कॉमन के लिए, 2s वैसे ही होगा. हमें इधर प्लस साइन है, तो हमें इधर ऑब्वियसली माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट माइनस साइन. नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट एज 1. अब हम ये दोनों वी आर गोइंग टू मर्ज दिस 2 एंड दिस इज अ कॉमन वन ब्रैकेट, सो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट हो गया, एंड 2s माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट हो गया, यानी कि दोनों भी ब्रैकेट सेम हो चुके हैं. सो 2s माइनस 1 हम अगर लेते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम ही होने वाला है. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू. 2s इज इक्वल टू ये यहाँ पर गया तो +1 होगा, सेम ईयर. उसके बाद s का वैल्यू निकालना है तो हाफ हो गया, और एक s का वैल्यू निकालना है तो ये भी हाफ हो गया, सेम ही आया. सो आवर अल्फा इज ऑल्सो हाफ एंड आवर बीटा इज ऑल्सो हाफ. ओके, नाउ हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे. तो पहला रिलेशनशिप है सम ऑफ द जीरो. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. तो हम देखेंगे -b अपॉन a, हमें वैल्यूज पहले निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 4, b इज -4, c इज 1. तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हो गया हाफ, बीटा भी है हाफ. व्हाट इज -b अपॉन a? -b अपॉन a, -b का वैल्यू है 4, a का वैल्यू है 4. सो नाउ b का वैल्यू है -4, और पहले भी हमें माइनस साइन लगाना है, तो इट्स गोइंग टू बी -4. उसके बाद माइनस इंटू माइनस हो गया 4 अपॉन 4, ये हो गया 4. ये तो सेम डिनोमिनेटर है, तो 1 + 1 becomes 2 upon 2. दिस विल बी 4 1 जा 4 1 जा 2 1 जा एंड 2 1 जा, मतलब 1 इज इक्वल टू 1. तो ये रिलेशनशिप
हमें मिल गया, दैट इज वी हैव वेरीफाइड दिस रिलेशनशिप। अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए वेरीफाई होता है या नहीं। सो व्हाट इज अल्फा, हमारा अल्फा हो गया हाफ इंटू बीटा हो गया हाफ इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू है 1 अपॉन ए का वैल्यू भी है, ए का वैल्यू है 4। जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 2 into 2 is 4, that is equal to 1 upon 4. So right hand side is equal to left hand side. So this relationship is also verified. This was about question number 2 from question 1. So now we will move to third sum. Now this is question number 3 from exercise 2.2 question 1. अब हमें दिया गया है 6x square minus 3 minus 7x. Now first we have to see whether it is in standard form or not. ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो पहले आया 6x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 7x, नेक्स्ट कम्स द कोएफिशिएंट दैट इज 3. Now we have to find factors. अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, हम a इंटू सी करते हैं तो 6 3 होता है 18। साइन क्या है, प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस। सो 18 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका आंसर हो -7। सो 2 के टेबल में आता है 2 9 18, क्या 7 मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। साइन क्या चाहिए इसे, माइनस, तो यहाँ पर बड़े नंबर को अगर माइनस साइन दिए तो माइनस प्लस माइनस होकर बड़े नंबर का साइन लग जाएगा और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। सो वी आर गोइंग टू पुट माइनस साइन टू 9 एंड प्लस साइन टू 2, दैट बिकम्स 7। हमें -7 भी मिल जाएगा और 9 टू 18 प्लस इंटू माइनस माइनस भी हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x -3। तो हमें ये इक्वेशन फैक्टर्स मिल गए। हम अभी बिटवीन दिस टू एंड दिस टू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉमन। हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें 2x कॉमन है, 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, एक x बचा, हमने वो लिख दिया, वी रोट दैट। फिर उसके बाद हियर द साइन इज प्लस तो हम प्लस लगाएंगे, 2x पहले से ही बाहर है तो हमें 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे बाहर। उसके बाद 3 हाउ मेनी इज 9, 3 3 जा बिकम्स 9, x कॉमन नहीं था तो x वैसे ही के वैसा आएगा। यहाँ पर साइन होगा प्लस का, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे -3 तो माइनस इंटू प्लस ही माइनस होगा, माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए वी आर गोइंग टू गिव अ साइन प्लस। नाउ हियर 3 तो कॉमन था तो कुछ नहीं है, मतलब वी आर गोइंग टू राइट 1। तो यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट मिल गए हैं, ये दोनों को क्लब करेंगे एक साथ एक ब्रैकेट में, दैट इज वी आर गोइंग टू राइट 2x - 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट वी आर गोइंग टू राइट 3x + 1। तो हर एक को इक्वेशन को 0 कर देंगे तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करते वक्त 2x इज इक्वल टू ये -3 का +3 हो जाएगा और 3x यहाँ पर रहेगा, ब्रैकेट +1 वहां पर गया तो -1 हो जाता है। नाउ दिस विल बी x इज इक्वल टू आया 3/2 और यहाँ पर x इज इक्वल टू आया -1/3। So we got 2 values. So one we will assume as alpha, other we will assume as बीटा। तो अल्फा सपोज हमारा हो जाता है 3/2। आप इसे अल्फा रखो या इसे अल्फा रखो, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, x इक्वल टू -1/3। आउटकम ऑफ रिलेशनशिप जो कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हमें
वैल्यूज अगर कंफ्यूज होता है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट द वैल्यूज हियर. A equal to 6, B equal to, we will see the standard form -7 and C equal to -3. अब नेक्स्ट वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. अल्फा का जो वैल्यू था वो था 3/2, बीटा का वैल्यू है -1/3. आप कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई राइट प्लस एंड देन राइट -1/3. दिस विल बी -b. सो पहले तो माइनस का साइन लगा देंगे, फिर उसके बाद -b विल बी -7/a. a का वैल्यू क्या है, 6 है. नाउ हियर फर्स्ट विल सॉल्व द ब्रैकेट. दिस बिकम्स 3/2. उसके बाद ये प्लस इंटू माइनस बिकम्स -1/3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाता है +7/6. पहले तो अभी ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सो वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर डिनोमिनेटर. वी हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है. सो वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो दिस बिकम्स 3 इंटू 3, माइनस साइन लग जाएगा 1 इंटू 2, और ये दोनों को हम स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे एज यू हैव सीन इन योर जूनियर क्लासेस. सो 3 3s becomes 9 minus 2/6 is equal to 7/6. तो उसके बाद 9 minus 2 हो जाता है 7/6. This becomes 7/6 is equal to 7/6. So this is the relation we verified for the sum. Now we have to verify it for the product. So what does product say? Alpha into beta is equal to C/A. So alpha into beta is equal to C/A. What is the value of alpha? Alpha का वैल्यू हमने निकाला था 3/2 multiplied by -1/3 is equal to what is the value of C? -3 upon what is the value of A? That is 6. Now in multiplication we do numerator multiplied by numerator and denominator by denominator. So ये हो जाता है 3 into 1 is 3 plus into minus is minus, 3 2 is 6 equal to -3/6. So we have verified the relationship for sum as well as the product. So that was about third question from question number 1. Start. So now this is sum number 4 from question number 1, which says 4u square plus 8u. अब ये भी सेम टाइप है, सिर्फ आपको लगेगा कि C कोएफिशिएंट दिया नहीं है. When C कोएफिशिएंट is not given, this is in the form of ax square plus bx plus c. But here C कोएफिशिएंट is not given, मतलब C कोएफिशिएंट 0 होगा. बट इसमें हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि दोनों में कुछ कॉमन है. तो क्या कॉमन है? 4 के टेबल में 8 आता है, 2u और एक u में 1u is common. So we are going to take out common first. So this becomes 4 कॉमन हो गया, एक u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा एक u. Here we are left with 1u and 4 how many is 8? 4 होता है, 2 is 8, u तो बाहर है. So इसमें हम करेंगे फर्स्ट 4u इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे. तो ये हमारे दो वैल्यूज मिल गए. तो u का वैल्यू हो सकता है 0/4 और ये हो गया -2, बिकॉज ये प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब ये u हो गया 0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0. और सेकेंड वैल्यू हमारा हो गया u इक्वल टू -2. वी गॉट अ वैल्यू ऑफ u इक्वल टू -2. वन we will assume as alpha, other we will assume as beta. एक अल्फा कर लेंगे, एक बीटा कर लेंगे. सो अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन. सो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट we will know the values of ABC. A का वैल्यू है 4, वैल्यू ऑफ B is 8. We don't know the value of C. That means obviously it's going to be 0. 0 हो जाएगा ना. Now let's see. हमने देखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट. तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा's वैल्यू 0 प्लस बीटा's वैल्यू इज -2.
अगेन हियर व्हाट इज बी, माइनस प्लस 8 है, ये माइनस ओरिजिनल साइन लगा है माइनस बी का, अपॉन एज वैल्यू इज 4. So this, if we take out the bracket, plus minus is equal to 4 1 सा हो जाएगा, 4 2 सा हो जाएगा, तो ये होगा -2, 0 -2 is -2 और ये -2. So left hand side, that is LHS is equal to RHS. That means we have verified this relation. Now we will verify the relation of multiplication, that is product form. What does product form say? Alpha into beta is equal to C upon A. तो हम अल्फा का वैल्यू, वी आर गोइंग टू फाइंड अल्फा's वैल्यू. द वैल्यू फॉर अल्फा इज 0 multiplied by beta's value is -2 is equal to C's value is 0 upon A's value is 4. Now anything multiplied by 0 is a 0, anything divided by 0 is a 0. So we have verified this relationship. So this was all about fourth sum from question number 1. Now this is sum number 5 with says t square minus 15. अब ये सेम ही है, बट ओनली थिंग यहाँ पर हमें ax स्क्वायर दिया गया है, bx दिया नहीं है, एंड द कोएफिशिएंट c इज गिवन. सो वी आर गोइंग टू डू वन थिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब b कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब b ये 0 होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक दो वैल्यूज इसके निकाल देंगे 0 करके. ओके, फाइंड जीरोस लिखा है, सो वी आर गोइंग टू पुट इट एट 0. सो पहला जो वैल्यू है वो होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0, ये 15 यहाँ पर गया, इसका साइन माइनस है, सो दिस विल बिकम +15. सो हमें सिर्फ t निकालना है, हम x निकालते जैसे वैसे t निकालना है. तो अगर हमें t निकालना है, टी स्क्वायर है, दैट मीन्स इज गोइंग टू बी √15. अब आप कहोगे ये एक ही वैल्यू आया, जब वन ओनली वैल्यू कम्स वी आर गोइंग टू लेट वन वैल्यू बी t इक्वल टू, फर्स्ट इट विल बी आइदर +15 या फिर वो होगा -15. दैट मीन्स वी हैव टू वैल्यूज, अल्फा एज √15 +15 and beta as √-15. Now what next? We have to verify the relationship. That is, पहले हम सम करेंगे. तो जब हम सम करते हैं दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b अपॉन a. ओके, तो अल्फा का वैल्यू है +15, दैट इज √15, सो इट्स गोइंग टू बी √15. बीटा का वैल्यू है √ प्लस लिख के -15. ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. बराबर, हम हमेशा वैल्यू फाइंड करते हैं. a का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब इट्स गोइंग टू बी 1. b इज नॉट गिवन, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 0 और c है -15. सॉरी, c का वैल्यू हो गया -15. तो वी आर गोइंग टू check this. b is going to be 0, a is going to be माइनस साइन है तो -0 लिख देंगे बिकॉज हियर इज माइनस साइन, अपॉन a is going to be 1. Now you know 0 doesn't have any value, so पहले तो हम √15 and plus into minus becomes -15 is equal to 0 कर देंगे. फिर उसके बाद now plus and minus becomes again 0 and 0, so we verified the relationship between the sum. Now we have to verify for multiplication. As you know, alpha into beta is equal to c upon a. So alpha's value is √15, ये प्लस में है. बीटा का वैल्यू है √15 but it is in a negative number. Okay. So what is the value of c? c's value is -15 upon a's value is 1. a का वैल्यू है 1. So now we will solve. √15 into √15 is always 15. कोई भी दो अंडर रूट लेंगे तो वही नंबर होता है. So √15 into √15 is 15. But
प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ माइनस, और ये -15 upon 1, that means it's going to be -15 only. So we have verified the relationship for the product form also. So this was all about fifth sum from question 1. Now we will switch on to sum number 6. Now moving on to last question, last sum of this question number 1 from exercise 2.2. The question says equation is 3x square minus x minus 4. तो हमें it is of same type. हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स. विच फैक्टर्स? 4 and 3 आर देयर. 4 3 is 12, प्लस इनटू माइनस इज -12. तो ऐसे फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं जिसका आंसर हो -1. आंसर आना चाहिए -1. सो अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो भी नहीं सकता है, बिकॉज वी वांट 1. 3 4 are 12. नाउ लेट्स से इट कैन बी 1. साइन हमें माइनस चाहिए और यहाँ पर भी माइनस चाहिए, सो बिगर नंबर विल हैव अ माइनस साइन एंड स्मॉलर, क्योंकि 4 3 are 12, प्लस इंटू माइनस बिकम्स -12, और -4 और 3 किया तो 1 होता है. साइन ऑफ बिगर नंबर -1. सो वी हैव गॉट द टू फैक्टर्स 3x square. Just put confusion now. 3x square plus 3x minus 4x minus 4. तो हमें इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है. सो व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन दिस टू? 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, सो इट्स गोइंग टू बी 3x. इट्स गोइंग टू बी 3x. नाउ वी हैव टेकन आउट 3x, तो एक x बचा यहाँ पर हुआ 1. यहाँ पर भी 4x में से 4 कॉमन है, -4 दे दिया. यहाँ पर लिखा x बचा था, x लिखा, +1 लिख देंगे, बिकॉज वी वांट द साइन हियर माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, दैट्स व्हाई हमने +1 किया है यहाँ पर. अब हमें 2 ब्रैकेट्स मिल गए हैं, ये तो कॉमन ही है, सो वी आर गोइंग टू क्लब दिस टुगेदर. दिस बिकम्स 3x -4 एंड दिस बिकम्स x +1. अब हमें इसको 0 करके करना है. सो one equation becomes 3x -4 and the other becomes x +1. तो x के दो वैल्यूज आएंगे, ये 3x वैसे के वैसा रह गया. नाउ हियर इट विल बी -4 हो जाएगा, +4 x हो जाएगा. यहाँ पर 3 is multiplied with x, so it will become divided. So this is first step. सेकेंड स्टेप, x इक्वल टू यहाँ पर +1 है, वहां पर जाकर इट्स गोइंग टू बी -1. नाउ वी विल लेट वन बी अल्फा एंड अदर वैल्यू बी बीटा. सो अल्फा इज इक्वल टू, लेट सपोज अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इक्वल टू, यू कैन टेक वाइज वर्सा ऑल्सो, आंसर विल बी सेम. तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप निकालना है, वेरीफाई करना है. सो अल्फा प्लस बीटा एज वी स्टडीड इज इक्वल टू -b/a, राइट. सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है 4/3, बीटा का वैल्यू है -1, सो प्लस एंड वी विल राइट -1 इक्वल टू -b. अब हमें देखना है पहले a इज इक्वल टू व्हाट 3, b is equal to -1 and c is equal to -4. So -b का वैल्यू होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन जो ओरिजिनल है वो लगाएंगे, फिर उसके बाद -1 हो गया अपॉन a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is 3. तो अब हमें एलसीएम निकालना है. यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये है अपॉन 1. पहले सम में भी हमने देखा था कि वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, दैट बिकम्स, ओके आई विल डू इट, 1 into 4 प्लस एंड माइनस, अगेन इट विल बिकम -1 into 3 अपॉन दिस बिकम्स 3 into 1. सो नाउ हियर इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस है तो ये बन जाएगा 1/3. 4 1 is 4, -1 into 3 is 3,
upon 3, 1 upon 3. So now here this will be 1 upon 3 equal to 1 upon 3. ये रिलेशनशिप हो गया प्लस के लिए. अब हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए. तो ये प्लस के लिए हुआ. नाउ वी फाउंड इट फॉर द सम. नाउ वी विल फाइंड फॉर द प्रोडक्ट. हम प्रोडक्ट के लिए फाइंड करेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. नाउ अल्फा का वैल्यू हमने क्या निकाला था? अल्फा वैल्यू इज 4/3 and what is the value of beta? It is -1, right? We will put a bracket to avoid confusion. Now what is the value of c? C का वैल्यू था -4 upon value of a that is 3. अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब is going to be 1. So 4 into 1 that is 4 minus into plus obviously it's going to be minus. 3 1 is 3 equal to -4 upon 3. So we have verified this relationship also. That was all about question number 1, all the 6 sum. Now further we will see question number 2.